Good morning, children. This is second video of sixth chapter, that is Bhakti in Sufi tradition and changes in religious beliefs. In last video, we were discussing about the integration of cults. In Hindi, we can say integration of cult. What does it mean? अलग अलग संप्रदायों का समन्वीकरण और समायोजन. जो अलग अलग संप्रदाय और सेक्ट डेवलप हो रहे थे, रिलीजियस सेक्ट एंड संप्रदाय, उनका एकीकरण कैसे हुआ और उनका समन्वय कैसे हुआ. So, how did the great tradition and little tradition mixed with each other? We discussed already what was the great tradition and little tradition. So, how it was mixed with each other. Firstly, we discussed about the wooden statue of Jagannath temple, which was made and worshipped by some local specialist tribe. But over time, it was worshipped as the main deity and it was recognized as the form of Vishnu. So here you will see the earlier form of Vishnu, which was universally accepted and adopted, and this was the statue, wooden statue made by a local tribe, specialist local tribe, and after that this statue was being worshipped by the different people, by the others, and it was universally accepted, adopted, and worshipped by the in the form of Vishnu. So this was the form of great tradition, which was universally accepted and adopted, and this was the local tradition, little tradition, which was accepted in the later period by in the form of Vishnu. So this was the integration of cults. So this example proves the integration of cult. Secondly, in the same way, such examples of integration are evident amongst goddess cults. Earlier, statues of goddess were worshipped, but now stones smeared with ochre were worshipped, and all these were recognized in the form of different deities, goddess deities. Children, you must be knowing about the major deities of Vedas, Vishnu, Shiv, and the goddesses. But now the another form was being developed at that time. सिंदूर को, रॉक्स को सिंदूर से कवर करके, कलर करके, और उसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ गॉडेस का नाम दे दिया जाता था, डिफरेंट डाइटीज़, गॉडेस डाइटीज़ का नाम दे दिया जाता था. जैसे कि वाइफ ऑफ विष्णु दैट वाज एक्सेप्टेड एज लक्ष्मी, वाइफ ऑफ शिव दैट वाज एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ पार्वती. सो इन दिस वे different tradition were being developed at that time. The rock stone, the piece of stone smeared with ochre, and it was accepted as the deity, goddess deities. So likewise, a Vishnu wife, Lakshmi and Parvati, at the same time these goddess were worshipped and classified as तांत्रिक. ऐसे ही यहाँ जो दूसरी पिक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये फॉर्म है तांत्रिक फॉर्म है, जिसके तहत ये लोग जप तप अनुष्ठान करते हैं. ये भी फॉर्म दिखाया गया है जिसमें काली को इष्ट देवी के रूप में मान करके ये तांत्रिक प्रैक्टिसेस किया करते हैं. अब ये तांत्रिक प्रैक्टिसेस क्या थी? व्हाट वाज तांत्रिक? सो तांत्रिक प्रैक्टिसेस वर वाइड स्प्रेड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एंड दिस प्रैक्टिसेस वाज पॉपुलर बिकॉज एनीवन, वेदर मेन एंड वुमेन, could practice and could adopt this tradition, this tantric tradition, as well as this tantric practice could adopt it by any person irrespective of caste, creed and gender. क्यों पॉपुलर हो रहा था? क्योंकि ये सभी के लिए अलाउड था, चाहे वो मेन हो या विमेन हो, कोई भी इस अनुष्ठान को, इस तंत्र विद्या को अडॉप्ट कर सकता था. दूसरे, इसमें कास्ट बार नहीं था, किसी भी कास्ट के लिए ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं था और किसी के लिए अलाउड नहीं था. इसे कोई भी अपनी मर्जी से एक्सेप्ट कर सकता था. इस कारण से ये तांत्रिक पद्धति और प्रैक्टिस जो थी वो इंडिया में बहुत प्रचलित हो रही थी. All of these diverged and different beliefs of practices would come to be classified as Hindu and over the course of next millennium. So this practice was unlike to Vedic and Puranic text. Now the principal deities of Vedic text, Agni, Indra and Som, become marginal figures.
तो जैसा कि आपने देखा कि ऐसे तांत्रिक पद्धति का कहीं भी वेदों में कहीं इसका उल्लेख नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, और ये वेद के अगेंस्ट ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की जा रही थी और प्रचलित हो रही थी और डेवलप हो रही थी। लेकिन अभी भी वेदों की जो संरचना थी, वेदों का जो ऑथेंटिसिटी थी, वो अभी भी लोगों के मन में था। लेकिन वेद में जो प्रचलित देवता थे जैसे कि अग्नि, इंद्र एंड सोम, वो कहीं भी अब मार्जिनलाइज्ड हो चुके थे, मार्जिनल फिगर हो चुके थे, और कहीं भी इनका टेक्सचुअल एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं मिलता है इस टाइम पीरियड में। अभी तक आपने पिछले जितने भी चैप्टर्स देखे उसमें कहीं भी इंद्र, अग्नि एंड सोम का विजुअल रिप्रेजेंटेशन या टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन आपने पुराणों में, उपनिषदों में नहीं देखा। अब जो मेजर डाइटीज़ हो गए वो विष्णु थे, शिव थे एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ गॉडेसेस थी, और उसके अलावे जो आगे चले तो हम तांत्रिक प्रैक्टिसेस थे। तो ये सारी चीज़ें इमर्ज हो रही थी। दो डिस्क्रिपेंसीज वर देयर बट वेदास कंटिन्यू टू बी रिवर्ड एज ऑथेंटिक एंड ऑथोरिटेटिव। सो वैदिक परिपाटी के जो प्रशंसक थे उन सभी व्यवहारों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ यज्ञों के संपादन से परे था। क्योंकि ये सारे प्रैक्टिस वेद में नहीं दिए गए थे, इसलिए जो वैदिक धर्म को मानने वाले लोग थे वो समझते थे कि ये सारी चीज़ें जो यज्ञों के अनुष्ठान और वैदिक मंत्रों की उपासना से अलग है, वो किसी भी तरह से प्रशंसनीय नहीं है। ये वैदिक धर्म के मानने वाले लोगों का कहना था। जो तांत्रिक आराधना में लगे रहते थे वो वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। उनके अनुसार जो तंत्र विद्या कर रहे हैं वो वैदिक सत्ता की अवहेलना कर रहे हैं। और इसके अलावा भक्त अपने इष्ट देव विष्णु या शिव को भी कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे। बौद्ध धर्म कभी कभी तथा जैन धर्म से भी इनका संबंध तनावपूर्ण हो जाता था। तो ये जो तांत्रिक प्रैक्टिस करने वाले लोग थे वो बिल्कुल ही समाज की विपरीत दिशा में चल रहे थे, क्योंकि ये ना तो वेदों के द्वारा एक्सेप्टेड थे, ना तो बुद्धिज्म के द्वारा एक्सेप्टेड थे, और ना ही जैनिज्म के द्वारा एक्सेप्टेड थे। तो ये अपनी अलग संरचना, अपनी एक अलग विचारधारा इनकी डेवलप होती जा रही थी। ये था तांत्रिक प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स। अब हम देखेंगे डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। व्हेन पीपल फेल ब्लेस्ड with the divine power, they attained a trance-like state. It means they were not considering themselves on the earth. They reached in the divine world in a thrilled sense of feeling. अब यहाँ हम देखते हैं कि कई एक दूसरा सेक्ट अलग डेवलप होता जा रहा था, जो सिंगिंग एंड चैंटिंग ऑफ मंत्रास के द्वारा अपने आप को डिवाइन पावर ओरिजिनेट कर रहा था, और डिवाइन सेंस ऑफ पावर, सेंस ऑफ फीलिंग डेवलप होता जा रहा था उनके अंदर, और ये अपने आप को एक अलग सेक्ट का मानने लगे थे। In the course of evolution of these forms of worship, poet saints emerged as leaders around whom these developed a communities of devotees. अब ये जो सिंगिंग ऑफ कंपोजिशंस एंड चैंटिंग ऑफ मंत्रास के द्वारा जो डिवाइन सुपर नेचुरल पावर ओरिजिनेट कर रहे थे और फील कर रहे थे, उनकी अलग अलग इवोल्यूशन, अलग तरीके से इवोल्यूशन होने लगा। और पोइट सेंट उनके जो एक कंपोजिशन को लिखने वाले थे वो पोइट सेंट इनके लीडर के रूप में इमर्ज होने लगे, और एंड दे डेवलप्ड ए कम्युनिटीज़ ऑफ डिवोटीज़, और इनकी अलग अलग एक कम्युनिटीज़, एक ग्रुप बन गया इनका, जो एक पोइट सेंट जिनके लीडर हुआ करते थे, और उनके कंपोजिशन को इनके डिसिपल्स और फॉलोअर्स जो थे वो उसे चैंट करते थे, उसे गाते थे, और उस डिवाइन पावर की अनुभूति में वो खो जाते थे। Still Brahmins remained intermediaries between God and goddesses, devotees in several forms of भक्ति। अभी भी जो ब्राह्मण्स थे वो गॉड एंड भक्त के बीच में मेडिएटर का काम कर रहे थे। एंड इन दीज ट्रेडिशन singing and chanting of devotional composition also accommodated and acknowledged by women and the lower caste। और ये सिंगिंग एंड चैंटिंग ऑफ मंत्रास का जो कंपोजिशन का जो ग्रुप डेवलप हो रहा था, इसलिए हो रहा था कि यहाँ ब्राह्मणों की कोई आवश्यकता नहीं थी। ब्राह्मण यहाँ मेडिएटर्स के रूप में उपस्थित नहीं थे, मेडिएटर का काम नहीं कर रहे थे, बल्कि ये सारे वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वुमेन हो चाहे वो लोअर कास्ट के लोग हों, ये सबके लिए अलाउड था। तो इसलिए भी ये ज़्यादा, क्योंकि इसमें कोई भी कास्ट बार या कोई भी जेंडर बार नहीं था, इसलिए ये पूरी तरह से लोग इसको एडॉप्ट कर रहे थे, और ब्राह्मणों की महत्ता धीरे धीरे थोड़ी कम हो रही थी। कंसिडर्ड इनएलिजिबल फॉर लिबरेशन विद इन द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क।
What was characterized tradition of भक्ति was a remarkable diversity. तो हम कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड का जो सबसे एक कैटेगराइज्ड जो विशेषण था, जो एक गुण था, वो था कि यहाँ पे डाइवर्सिटी, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्स सेक्ट एंड कंपोजिशन ग्रुप्स वर बीइंग डेवलप्ड इन द टाइम पीरियड. 5th सेंचुरी से लेकर के 6th सेंचुरी से लेके अगले टाइम पीरियड तक. सो यहाँ आप देखेंगे कि डिवोशनल वर्शिप हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट 1000 years बिफोर द पीरियड वी आर कंसिडरिंग. लेकिन इस टाइम पीरियड से पहले 1000 सालों का हमारा इतिहास है, जब हम वेद को, पुराण को अपनी भक्ति का एक हिस्सा मानते आ रहे थे, तो उसे भूलना तो मुश्किल था. लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम एक्सप्रेशंस ऑफ डिवोशन रेंज्ड फ्रॉम द रूटीन वर्शिप ऑफ डाइटीज विद इन टेम्पल्स टू एक्सटैटिक एडोरेशन वेयर डिवोटीज अटेंड ट्रांस लाइक स्टेट. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि एक सिंगिंग ऑफ कॉम्पोजिशन एंड चैंटिंग ऑफ मंत्राज, इनके तहत वो एक अलग दुनिया अपनी निर्मित कर रहे थे, एक अलग दुनिया में अपने आप को फील कर रहे थे. So the singing and chanting of devotional compositions was often a part of such modes of worship. और एक अलग तरह का worship create होता जा रहा था, develop होता जा रहा था. So in the course of the evolution of these forms of worship, in many instances, poets, saints emerged as leaders around whom they developed a community of devotees. और इस तरह से historians जो हैं, तो अलग अलग संप्रदायों को उन्होंने दो भाग में क्लासीफाई किया. So, एक भाग जो था वो कहलाया सगुन विद एट्रीब्यूट्स, और दूसरा भाग जो कहलाया निर्गुण विदाउट एट्रीब्यूट्स. सगुण मतलब जिनका कोई, जिसमें हम विष्णु, शिव, गॉडेस, जिनका किसी आकार की, किसी फॉर्म की पूजा करते हैं, और निर्गुण जो कि फॉर्मलेस है. तो इस तरह से भक्ति के दो दो भाग में क्लासीफाई किया गया. हिस्टोरियंस ने इसे क्लासीफाई किया, सगुण वन पार्ट एंड द निर्गुण द अनदर पार्ट. तो सगुण विद एट्रीब्यूट्स, जो कि मेजर डाइटीज की पूजा होती थी, उनके आइडल्स होते थे, स्टेच्यू जो होते थे. और निर्गुण, दैट वाज ऑब्स्ट्रैक्ट, इट वाज सेंस ऑफ फीलिंग. So the former included tradition that focused on the worship of specific deities such as Shiva, Vishnu and his avatars, incarnation, and forms of the goddess or Devi, all often conceptualized in anthropomorphic forms, मतलब मानवीय फॉर्म, ह्यूमन फॉर्म में जिनकी पूजा होती थी. एंड निर्गुणा भक्ति ऑन द अदर हैंड was worship of an abstract form of God which was not in a form, it could be felt only. So historians classified the sagun form in two parts in South India. अभी जो सगुन फॉर्म्स थे उसका भी क्लासिफिकेशन हुआ साउथ इंडिया में दो भाग में, जिसे हम कहते हैं अलवर्स एंड नैनार्स, तमिलनाडु, स्पेशली इन तमिलनाडु. So alvars and nainars. Alvars means one who is immersed in the expression of God, the omnipresent mysterious one. So 12 tradition in alvars and 63 streams tradition in nainars emerged and developed in South India, especially in Tamil Nadu. They came from all walks of life and all strata of society between 5th and 9th century in the Tamil speaking region of South India. These saints revitalized the Indian religious milieu and sparkling a renewal of devotional worship throughout the subcontinent. Traveling from place to place, temples to temple, holy site to holy site, they composed beautiful poetries to their divine beloved Vishnu as an expression of their love for him. अब जो अलवर थे वो विष्णु की पूजा करने वाले कहलाए, जिनका 12 स्ट्रीम 12 ग्रुप था इनका, और कम्युनिटी थी इनकी. और जो नैनार्स थे, जो शिव की पूजा, शिव के फॉलोअर्स थे, वो नैनार्स कहलाए, और इनके 63 संप्रदाय थे. So some historians suggest that Alvar and Nainars initiated a movement of protest अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम. अभी कहा जा सकता है कि ये जो अलवर्स एंड नैनार्स थे, इन्होंने एक मूवमेंट चलाया कास्ट सिस्टम के खिलाफ, क्योंकि डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स और एटलीस्ट अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म द सिस्टम. जो हमारा वैदिक सिस्टम चला आ रहा था उसमें इनको मॉडिफिकेशन करना था, उसमें इनको रिफॉर्म करना था, और ब्राह्मण्स की जो डोमिनेटिंग एटीट्यूड था समाज में, उससे अलग करने के लिए इन्होंने एक प्रोटेस्ट के रूप में चलाया. ये अलवर्स और नैनार्स ने अपना एक ग्रुप, एक अपना अलग संप्रदाय कंबाइन किया, एस्टैब्लिश किया. To some extent, this is corroborated by the fact that Bhakts hailed from diverse social backgrounds ranging from Brahmins to artisans and cultivators
and even from caste considered untouchables. अब इसके जो पार्ट थे, इनके जो फॉलोअर्स थे वो किसी भी ब्राह्मण्स भी थे, आर्टिशंस भी थे, कल्टिवेटर्स भी थे, एंड इवन अनटचेबल्स जो समाज में अछूत माने जाते थे वो भी इस कम्युनिटी के पार्ट हुआ करते थे, चाहे वो अलवर्स हों चाहे वो नैनार्स हों. सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ द अलवर्स एंड नैनार्स was sometimes indicated by the claim that their compositions were as important as the Vedas. ब्राह्मणों की डोमिनेंसी को तो इन्होंने क्लेम किया ही, साथ ही इन्होंने कहा कि उनके जो कंपोजिशंस हैं वो उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने की वेद के जो वर्सेस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं. सो फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द मेजर anthologies of composition by the Alvars, the Nainars, the Nalavira दिव्य प्रबंधम. अब जो वेदों को जिन्होंने चुनौती दी, इनकी जो रचना थी नालावेरा दिव्य प्रबंधम, इसे तमिल में वेद की संज्ञा दी जाती है, इसे वेद माना जाता है, जो कि इनके ग्रुप लीडर्स, इनके जो पोइट्स एंड लीडर्स थे उनके कॉम्पोजिशंस हैं. इसमें वॉज फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज तमिल वेद. इनको तमिल वेद माना गया, दस क्लेमिंग दैट द टेक्स्ट वॉज एज सिग्निफिकेंट एज द 4 वेदाज इन संस्कृत दैट वेर चेरिस्ड बाय द ब्राह्मण्स. और ये वेद की तरह ही उतने ही इंपॉर्टेंट थे जितने की वेद. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू.